Welcome to my dear online student. This is another session for class 12th chemistry. You know that in the previous topic, in the previous session, we have started from colligative properties, and you know that colligative properties, their definition, all has been discussed there. Also, we discussed there an important factor that is known as Van't-Hoff factor, because Van't-Hoff factor is an important parameter that you must know regarding while studying colligative properties, because without studying a Van't-Hoff factor you can't calculate the exact value of colligative properties. And there are various types of colligative properties. As you know, colligative properties are those properties of the solution which wholly and solely depend upon the amount of the solute, or number of particles of the solute, or number of moles of the solute present in the solution. And from that point of view, one of the colligative property, that is relative lowering of vapor pressure, that we have discussed already while studying Reolte's law. As Reolte's law is meant for two types of solutions, wholly and solely, that is meant for ideal solution, and Reolte's law is used for calculating the vapor pressure of the solution. But there we discussed two cases. One case was a solution containing volatile solvent and non-volatile solute, and the other solution which contains both volatile solute and volatile solvent, that we have discussed in the previous chapter. And there we got a relationship for relative lowering of vapor pressure. And what is that relationship? That is, suppose अगर हम देखेंगे वो रिलेशनशिप ऐसी थी, सपोज पी नॉट माइनस PS divided by P naught is equal to mole fraction of the solute. This was the relationship there, and this is called relative lowering of vapor pressure. And if you try to solve this further, it will come like this: P naught minus, what is P naught? P naught is the vapor pressure of the pure component, and PS is the vapor pressure of the solution, that is after adding volatile or non-volatile solute in the solvent. We will get PS P naught is equal to absolute किसके बराबर होता है आपको ये पता है. सपोज अगर हम सोल्यूशन मानते हैं, ए बी की सोल्यूशन है हमारे पास, तो फिर क्या आएगा? सपोज ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है, तो उनके हमने क्या कहा? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. बी सोल्यूट है तो यहाँ पे एन बी एन ए प्लस एन बी आएगा. और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि इस पी नॉट माइनस पी एस को हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई पी नॉट. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ज्यादातर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस. जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सोल्यूट के जो मोल्स होंगे डिनोमिनेटर में, वो हम नेग्लेक्ट करते हैं. तो फिर हमारा क्या बनता है? एन बी डिवाइड बाई एन ए. ये हमारे रिलेशन आते हैं. मगर इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई सोल्यूशन हम बनाते हैं, सोल्यूट का बिहेवियर कैसा होगा सोल्यूशन में, वो हमें कौन बताता है? Van't-Hoff फैक्टर. इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल किया था आई. व्हाट इज आई? आई इज Van't-Hoff फैक्टर. ये हमें बताता है कि क्या एक सोल्यूट सोल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, या ऐसा का ऐसा ही रहता है. वो हमें किससे पता चलता है? आई से पता चलता है. दैट मीन्स वेदर देयर डिसोसिएशन ऑकर्स, एसोसिएशन ऑकर्स, और नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन. और मैंने आपको बताया था डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1. और एसोसिएशन के लिए क्या होता है? आई का वैल्यू लेस देन 1. और नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, उसका आई वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. और ये भी याद रखना है आपको. इसके लिए आपको और एक चीज की, आई निकालने के लिए जो फार्मूला मैंने बताया, वहां पे एन के लिए भी आपको याद रखना है एन का वैल्यू क्या होता है. फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एन का वैल्यू होता है कि ये कितने, एक मॉलिक्यूल कितने आयनों पर हम करता है. इसी तरह इनके साथ जो जहाँ पे एसोसिएशन होती है, वहां पे आपको देखना है कि अगर आपने 2 मोल्स ले, उसका कितना बन गया? 1 बन गया, या 2 के 2 रह गए, या 3 लिए आपने, उसके कितने बन गए? तो वहां पे आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है. अब सवाल है
कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास, हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकालते हैं, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हम निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपको सपोज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया होगा, तो फिर आपको निकालना होगा उसका मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना होगा। क्योंकि अब जब हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया तो एन बी डिवाइड बाई एन ए, ये इसका वैल्यू अब हमें देखना है, ये किसके बराबर होगा। एन बी का वैल्यू खुद का किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा मैंने जब आपको मोल में समझाया था 11th में भी, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के किसके बराबर होता है, वेट गिवन मास ऑफ द मोल्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द मोल्स। और शाबाश, गिवन मास ऑफ द ए, मोलर मास ऑफ द ए इनटू अपना आई है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगी, डब्ल्यू बी एम बी इंटू एम ए डिवाइड बाई शाबाश डब्ल्यू ए इंटू आई। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि आई भी दिया होगा या आई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पी नॉट भी दिया होगा, तो ये सब चीज़ें दिए होंगे। तो आप यहाँ से सपोज अगर आप देखोगे, अब ये सारा क्या है, ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, RLVP है। तो अगर आपको देखना होगा MB क्या होता है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अगर आपको MB निकालना होगा वो किसके बराबर आएगा, MB इज इक्वल टू WB इंटू MA इंटू आई डिवाइड बाई डेल्टा P डिवाइड बाई P नॉट इंटू WA। इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट आप इस तरह इस फार्मूला से निकाल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। और इस ज़िमन में जितने भी ग्राफ वगैरह थे वो मैंने आपको सब सिखाया था उस सिलसिले में। अगर आप फिर से उन ग्राफ्स की ओर जाना चाहते हो, उन ग्राफ्स को फिर से समझना चाहते हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस को लिंक कर सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो। तो ये है फार्मूला। तो अगर आप जाओगे टेक्स्ट में, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब जो अगर आप ग्राफ भी देखना चाहते हो इस सिलसिले में, तो मैं आपको ग्राफ भी समझाऊंगा।